Hello friends, greeting of the day, and let us start with our continued topic, measure of dispersion. Today is the second lecture, and over here we will have some revision of the last lecture first, and then we go further in our today's lecture. So what we are going to revise is first the last slide of the last lecture, and that was properties of range. Range has no mathematical properties. In dispersion, only standard deviation has mathematical properties. Mathematical properties का मतलब है यहाँ पे कि हमें combined range find करना, और यहाँ पे combined range is possible नहीं है. Important points of range. First point, it is simple to calculate and easy to understand. Point number 2, it is quickest of all methods. Point number 3, it is not based on all observations. Point number 4, it is affected by extreme values. Point number 5, it cannot be calculated for open and class intervals. Point number 6, it is not affected by shift of origin. Point number 7, it is affected only by positive magnitude of change of scale. तो origin का मतलब था प्लस माइनस एंड स्केल का मतलब है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो अगर हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में प्लस माइनस करेंगे तो रेंज को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इट इज नॉट अफेक्टेड. हाँ, पर अगर मैंने स्केल में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो उसे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, राइट. एंड दैट टू विद पॉजिटिव मैग्नीट्यूड. सो दैट मींस अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, दैट इज -2 मल्टीप्लाई किया है, -3 मल्टीप्लाई किया, देन आल्सो योर आंसर विल रिमेन इन पॉजिटिव. एग्जांपल कि इफ y is equal to ax plus b, then relation between range of x and y is range of y is equal to modulus a into range of x. मॉड्यूलस में अगर नेगेटिव साइन भी होगा तो दैट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव. एथ पॉइंट, इट इज यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल टू फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स के लिए यूज होता है. So now based on this we will solve the multiple choice questions of range. Question number 1. The following are the prices of shares of XYZ Company Limited from Monday to Saturday. Day price, Monday 200, Tuesday 210, Wednesday 208, Thursday 116, Friday 220, Saturday 250. Calculate range and its coefficient. Option A, B, C, D given to you. So solve करेंगे. Solution, highest observation, that means highest price over here is 250. So lowest observation, that is lowest price from Monday to Saturday is rupees 160. Range is equal to highest minus lowest. Highest 250 minus lowest 160. 250 minus 160 is equal to 90 rupees. In range unit will come. अब आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन में चेक कर सकते हो कि अभी 90 रुपीज रेंज आपको कहाँ दिखता है. सो ऑप्शन ए, बी, सी में दिखता है, तो ऑप्शन सी में दिखता है 90. सो आई कैन से दैट कैन बी द आंसर, क्योंकि ऑप्शन में डी है, आई एम नॉट कंफर्म. हाँ, ये पता चल गया कि सी एंड डी में से ही अब कोई मेरा ऑप्शन होगा. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू highest minus lowest divided by highest plus lowest into 100. Now see, I am repeating again today also, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का ओरिजिनल फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट.
मल्टीप्लाई 100 नहीं है ओरिजिनल फॉर्मूला में, चाहे आप गूगल सर्च कर लो। हाँ, हमारे ICAI ने हमारे लिए इसको मल्टीप्लाई 100 किया है, ओके, ताकि हमारा जो नंबर आए वो हम उसे इजीली अच्छे से कंपेयर कर सकें, तो इसीलिए मल्टीप्लाई 100 है। अब मल्टीप्लाई 100 लगाना है नहीं लगाना है वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। देखने का आप ऑप्शंस में पहले देखोगे, अब सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20 दे रखा है, 23 है, 21.95 है, तो इसका मतलब होगा कि इन्होंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया है। बट अभी अगर 20, 23 या 21.95 की जगह पे उन्होंने ऐसे लिखा होता 0.20, 0.23, 0.2195, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इन्होंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो ये ऑप्शन भी हमें हेल्प करेगा कि हमें मल्टीप्लाई 100 करना है या नहीं करना है। आई होप पॉइंट क्लियर होगा। सो इक्वल्स टू 250 माइनस 160 divided by 250 plus 160 into 100. 250 minus 160 करेंगे, you will get 90 divided by 250 plus 160 will give you 410 into 100. अब आपको क्या करना है, 90 डिवाइड 410 into 100 करना है कैलकुलेटर पे, so you will get the answer 21.95. So you can say that option C is the correct answer. Question number 2. If highest value of data is 64 and coefficient of range is 0.28, find lowest value of data. Option A 35, option B 36, option C 34, option D 32. So in the question आपको क्या दे दिया गया है कि highest value of data है 64 and coefficient of range है 0.28. So highest value of data 64, coefficient of range 0.28 and हमें find करना है lowest value of data. Question coefficient of range is equal to, now what could be the formula for coefficient of range? Highest minus lowest divided by highest plus lowest. Now tell me, क्या मैं multiply 100 करूं या नहीं करूं? मैंने अभी लास्ट टाइम में कुछ बोला था, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 नहीं करूंगा क्योंकि मैंने देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो 0.28 है। तो अगर वो 0.28 है तो आई विल नॉट मल्टीप्लाई 100। हाँ, अगर वो 28 होता तो मैं मल्टीप्लाई 100 करता। ओके, सो अब हम हाईएस्ट की जगह प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 64। So 64 minus L divided by 64 plus L and your coefficient of range is 0.28. अब ये सम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.28 मल्टीप्लाई 64 plus L is equal to 64 minus L करके सॉल्व कर सकते हैं, और we can go with the help of GTO, go through option. So over here I prefer to go from go through option. So पहला ऑप्शन है 35। सो मेरा राइट हैंड साइड है 64 माइनस L डिवाइडेड बाय 64 प्लस L, L मींस लोएस्ट वैल्यू। सो व्हाट आई विल चेक कि मेरा राइट हैंड साइड अगर 0.28 आ गया तो व्हिच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, बिकॉज़ लेफ्ट हैंड साइड क्या है 0.28 है। तो आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 35 इन L प्लेस, सो 64 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 35 इक्वल्स टू 64 माइनस 35 इज 29 divided by 64 plus 35 is 99. अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 29 डिवाइड 99 will give you 0.29. हमें चाहिए था 0.28. So I will say which is not equal to left hand side. Now I will go to the next option, that is option B is 36. So right hand side 64 minus L divided by 64 plus L equals to, now in place of L I will substitute 36. 64 minus 36 divided by 64 plus 36. 64 minus 36 equals to 28 divided by 64 plus 36 is equal to 100. So 28 divided by 100 will give me 0.28.
So that is equal to left hand side. So I will say that option B is the correct answer. Question number 3. Which measure of dispersion is the quickest to compute? तो कौन सी क्विकेस्ट मेथड है कंप्यूट करने के लिए? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन बी क्वार्टाइल डेविएशन, ऑप्शन सी मीन डेविएशन एंड ऑप्शन डी रेंज. तो जब हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेंज पढ़ा था तब उसके अंदर में पॉइंट नंबर 2 था, it is quickest of all methods. So that means range is the correct answer. So option D is the answer. Question number 4. Which measure of dispersion is most affected by extreme values? So option A standard deviation, option B mean deviation, option C range, option D quartile deviation. मुझे पता है कि आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप डेफिनेटली बोलने वाले हो सर आपने अभी तक तो स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाया नहीं है, मीन डेविएशन पढ़ाया नहीं है, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ाया नहीं है, आपने रेंज ही पढ़ाया है, तो डेफिनेटली ना सर रेंज ही होगा. और ऐसा सर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेंज में पढ़ा भी है एट पॉइंट नंबर 4 दैट इट कैन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, है ना? आपने यही पढ़ा है ना पॉइंट नंबर 4 में, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. तो सर डेफिनेटली रेंज इज द आंसर. दूसरा, रेंज क्या होता है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट. सो अगर मेरा हाईएस्ट एंड लोएस्ट में काफी वेरिएशंस आ जाएंगे नंबर का तो डेफिनेटली माय रेंज विल ऑटोमेटिकली अफेक्ट करेगा. क्वेश्चन 5. Which measure of dispersion ensures that lowest degree of reliability? तो कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो ये इंश्योर करेगा क्या आपके यहाँ पे लोएस्ट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी हो? सो दैट इज रेंज. क्वेश्चन 6. रेंज ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज इज 60 एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द सीरीज इज 80. द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सीरीज इज. सो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सीरीज का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी नन. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेटा इक्वल्स टू 80, रेंज इक्वल्स टू 60. अब आपको क्या फाइंड करना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा फाइंड करना है, विच इज क्वेश्चन मार्क. रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है, तो हाईएस्ट की जगह पे हम 80 सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस एल क्योंकि वो हमको फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू, एंड रेंज आपको दे दिया गया है 60. So therefore I can say that L equals to 80 minus 60. Now 80 minus 60, so L is equal to 20. So I can say that option B 20 is the correct answer. Question number 7. The relative range equals to absolute range divided by sum of two extremes is. Now the relation relative range क्या है? एब्सोल्यूट रेंज. एब्सोल्यूट रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है. सम ऑफ टू एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम्स का मतलब क्या? कॉर्नर्स. तो आप कॉर्नर्स को क्या करते हो? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट करते हो. तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रिलेटिव रेंज? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट करते हैं ना. तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट क्या होता है? रेंज ही होता है. तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं? एब्सोल्यूट रेंज divided by h plus l. That means what you are doing is sum of two extremes को आप ऐड कर रहे हैं. So ये true है, false है, both है या none है? See both तो कभी हो ही नहीं सकता. So that means my answer will be A and B में से. So the option goes to true, option A.
Question number 8. If each item is reduced by 10, the range is, so option A, increase by 10, option B, decrease by 10, option C, unchanged, and option D, none. तो अगर each observation, each item is reduced by 10, तो रेंज को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पहले तो ये बताओ, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तो डेफिनेटली पढ़ा है that it is not affected by shift of origin. तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी, unchanged, is the correct answer. Now we will go with the new topic, that is quartile deviation. Now quartile deviation जो है based है Q1, Q2 and Q3. quartile का मतलब, बट यहाँ पे जब हम quartile deviation पढ़ेंगे तो वो quartile deviation सिर्फ जो based है on Q1 and Q3 के ऊपर based है. That means middle 50% of the observations. So quartile deviation, our second topic. Definition. It is defined as semi interquartile range. ये क्या डिफाइंड होता है? सेमी. सेमी का मतलब क्या? हाफ. इंटरक्वार्टाइल मतलब मेरे जो क्वार्टाइल्स हैं Q1, Q2, Q3 उसमें से ही, दैट इज इंटरक्वार्टाइल. एंड रेंज मतलब कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. सो क्वार्टाइल में हाईएस्ट क्या होता है? Q3. लोएस्ट क्या होता है? Q1. और सेमी का मतलब हो गया हाफ. तो यहां से ही हम फॉर्मूला बना सकते हैं. सेमी में मतलब हाफ, interquartile range, that is Q3 minus Q1. So formula, quartile deviation is based on Q1 and Q3, where Q3 is equal to third quartile, Q1 equals to first quartile. First QD is equal to Q3 minus Q1 upon 2. तो ये था हमारा फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन. सेमी मतलब हाफ, इंटरक्वार्टाइल मतलब क्वार्टाइल में से ही रेंज निकालना है. सेकेंड इज इंटरक्वार्टाइल रेंज. अब इंटरक्वार्टाइल रेंज सेमी हट गया है, तो इसका मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि फाइंड करो इंटरक्वार्टाइल रेंज, सो Q3 माइनस Q1 होगा. थर्ड, coefficient of QD, that is relative measure of QD. Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 into 100. Fourth, coefficient of QD. Now in numerator and denominator में मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया. So numerator को भी 2 से डिवाइड कर दिया and denominator को भी 2 से डिवाइड कर दिया. So Q3 minus Q1 upon 2 divided by Q3 plus Q1 divided by 2 into 100. Now remember one thing again, the original formula of coefficient of QD is equal to Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 है. Again remembering you that into 100 किसने रखा है? ICAI ने रखा है. अभी यहां से क्या होगा? सो कोएफिशिएंट ऑफ QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 को मैं क्या रख सकता हूं? QD रख सकता हूं, क्योंकि हमने ऊपर ही लिखा है QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. सो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 क्या हो गया? QD हो गया, डिवाइडेड बाय. नाउ Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2 को हम मीडियन बोलते हैं. सो जब हम मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? Q3 plus Q1 divided by 2. So over here also Q3 plus Q1 divided by 2 के प्लेस में मैं क्या रख दूंगा? मीडियन into 100. So ये कब यूज होगा? फॉर मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होगा. नाउ ये फॉर्मूला जो है जनरली हम लोग शॉर्ट सम्स में यूज करते हैं, क्योंकि QD दे दिया जाता है, मीडियन दे दिया जाता है और बोलते हैं कि फाइंड करो कोएफिशिएंट ऑफ QD, तो तब हम ये यूज करेंगे. ओके, सो फॉर्मूलाज आर क्लियर. QD is equal to Q3 minus Q1 upon 2. इंटरक्वार्टाइल रेंज Q3 minus Q1 होता है. कोएफिशिएंट ऑफ QD
Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 into 100. And the fifth formula, coefficient of QD is equal to QD upon median into 100. Right? Question number 1. Calculate QD and its coefficient. 12, 15, 10, 17, 30, 28, 6, 15, 20, 18. So total 10 ऑब्जर्वेशंस है. हमें फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन. पर क्वार्टाइल डेविएशन से पहले हमें इन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. सो आई एम गिविंग अ टाइम टू अरेंज दोस नंबर्स फर्स्ट. चलिए, आई एम गिविंग अ 30 सेकंड टू अरेंज द नंबर्स. Okay, done. So first number would be 6, then next number will be 10, next number will be 12, after 12 15. Now 15 जो है वो 2 बार है ऑब्जर्वेशन. इज रिपीटिंग अगेन ना, ध्यान रखना. लास्ट थर्ड में चेक करो, 15 एक और दे रखा है. एंड स्टार्टिंग से सेकंड में, so 15 has to be written 2 times. After 15 17, after 17 the number is 18, then 20, 28 and then 30. अब चेक कर लो कि आपने 10 ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं. तो 6, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 28, 30. So Q3 is equal to 3n plus 1 divided by 4th term. So equals to 3. अब n की प्लेस पे आप 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे. So 10 plus 1 divided by 4th term. Now 10 plus 1 is 11. 11 divided by 4. Yes, कितना होगा? 2.75. Multiply 3 will give you 8.25th term. अब इसको लिखेंगे कैसे? So Q3 is equal to 8th term plus 0.25 ब्रैकेट में 9th टर्म माइनस 8th टर्म, क्योंकि 8.25 जो है वो 9 और 8 के बीच में आएगा. अब आपका 8th टर्म कौन सा है ऑब्जर्वेशन में? चलो चेक करते हैं. 6, 10, 12, 15, 15, 17, 18, 20. So 20 is your 8th term plus 0.25 and 9th term will be 28. So 28 minus 20. Now 28 minus 20 करोगे, you will get 8. 8 multiply 0.25 will give you 2 and 20 plus 2 will be 22. So Q3 is equal to 22. So Q3 हमें मिल गया. Now we will find Q1. So Q1 is equal to n plus 1 divided by 4th term equals to 10 plus 1 divided by 4th term. 11 divided by 4 will give you 2.75 term. अब हम Q1 लिखेंगे equals to second term plus 0.75. अब 2.75 टर्म जो है वो 2 और 3 के बीच में आएगा, सो इसीलिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल्स टू. नाउ व्हाट इज योर सेकेंड टर्म? 6, 10. तो सेकेंड टर्म क्या हो गया? 10 प्लस 0.75. योर थर्ड टर्म विल बी 12. सो 12 माइनस 10. 12 माइनस 10 होता है 2. 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से तो वो आएगा 1.5. 1.5 10 में ऐड होगा तो यू विल गेट 11.5. सो Q3 इज इक्वल टू 11.5. हमें फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन, दैट इज QD इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 22 माइनस 11.5
divided by 2 equals to 10.5 divided by 2 equals to 5.25. सो QD इज इक्वल टू कितना हो गया 5.25 हो गया फाइनली. अभी कोएफिशिएंट ऑफ QD फाइंड करेंगे. दैट इज Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 into 100. सो Q3 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे 22 एंड Q1 की वैल्यू है 11.5. So 22 minus 11.5 divided by 22 plus 11.5 into 100. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 minus 11.5 equals to 10.5 divided by 22 plus 11.5 is 33.5 into 100. अब कैलकुलेटर पे आप काउंट करेंगे. कैलकुलेट करिए 10.5 डिवाइड 33.5 into 100. So you will get 31.34. So coefficient of QD is 31.34. Question number 2. Calculate coefficient of QD and QD. दोनों फाइंड करना है आपको. And weight in kg 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 and number of persons 15, 24, 30, 20, 14, 10, 6. अब ये कौन सा डेटा है? Yes, this is discrete frequency distribution जहां पे आपको x and f दे दिया जाए. तो सॉल्यूशन weight in kg, persons and cumulative frequency. So 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Number of persons हैं 15, 24, 30, 20, 14, 10, 6. अब हम cumulative frequency निकालते हैं. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 15. 15 plus 24 39. 39 plus 30 69 plus 20 89 plus 14 103 plus 10 113 and plus 6 119. So that means number of persons जो है आपके टोटल कितने हो गए 119. Q3 is equal to 3 n plus 1 divided by fourth term equals to 3 और n की प्लेस पे मैं 119 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो 119 plus 1 120 divided by 4 that is 30 into 3 is 90. तो 90th टर्म को अब मैं CF के कॉलम में चेक करूंगा. तो जब मैं इसको CF के कॉलम में चेक करूंगा तो ये पता चलेगा कि वो 69 एंड 89 के बीच में आएगा. नो, क्योंकि ऑलरेडी 89 है और हमको चाहिए 90th टर्म. सो दैट मींस ये किसके बीच में आएगा 89 एंड 103 के मिडल में आएगा. तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि 90th टर्म सीन इन CF 103 और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो x है दैट इज 60. सो आपका Q3 हो जाएगा 60. अब हम फाइंड करेंगे Q1 इज इक्वल टू n plus 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म इक्वल्स टू n की प्लेस पे 119 plus 1 divided by 4. 120 divided by 4 will give you 30th term. अब जो 30th टर्म है वो हम कहां देखेंगे 15 and 39 के मिडल में, that is in CF column. So 30th term seen in CF 39, corresponding x 45. So therefore Q1 equals to 45. आपको क्या फाइंड करना है QD and coefficient दोनों. So QD is equal to Q3 minus Q1 upon 2 equals to 60 minus 45 divided by 2. Q3 की वैल्यू 60, Q1 की वैल्यू 45. 60 minus 45 करेंगे. 60 minus 45 gets you 15 divided by 2, that is 7.5. QD is equal to क्या बोल देंगे 7.5 kg. Now coefficient of QD equals to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 into 100 equals to, now what is the value of Q3? 60, Q1 45 divided by 60 plus 45 into 100. 60 minus 45 gets you 45. 45 into 100 is 100. 100 plus 45 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 is 100.
equals to 15 divided by 105 into 100. Now 15 divided by 105 करेंगे आप and then into 100. So you will get 14.29. So QD है 7.5 kg and coefficient of QD है 14.29. So let's now study effect of shift of origin and change of scale. So effect of shift of origin and change of scale में सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि for all the four dispersion rules are exactly same. कौन सा rule? That rule number 1. It is not affected by shift of origin. मतलब कि प्लस माइनस से इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. ये याद रखना है डिस्पर्जन में. रूल नंबर 2. It is affected by positive magnitude of change of scale. ये भी हमें याद रखना है. It is affected by positive magnitude of change of scale. So if y is equal to ax, तो a है हमारा change of scale plus b shift of origin, that is addition subtraction होता है b में. So qd of y equals to modulus a into qd of x. So quartile deviation of y is equal to modulus a multiply quartile deviation of x. यहाँ पे हम b नहीं लिखते. क्यों नहीं लिखते? Because b is not considered in equation of quartile deviation because quartile deviation is not affected by shift of origin. Question number 3. If relation between x and y is 3x plus 4y equals to 30 and quartile deviation of y is 4. Find quartile deviation of x. तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दे दिया गया है 3x plus 4y equals to 30. क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y जो है 4 है. फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x. सो सॉल्यूशन है गिवन 3x plus 4y equals to 30. हमें क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x फाइंड करना है. सो 3x is equal to माइनस 4y, क्योंकि प्लस 4y जो लेफ्ट था उसे आप राइट में ले जाएंगे, तो माइनस 4y प्लस 30. x is equal to माइनस 4/3y प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 10. एंड ओवर हियर माइनस 4/3 इज चेंज ऑफ स्केल प्लस 10 हो गया. नाउ 10 क्या है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. सो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस में आएगा -4/3 मल्टीप्लाई क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू 4/3 मल्टीप्लाई क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज 4. तो 16 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव यू 5.33. सो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x जो है 5.33 है. Question number 4. If relation between x and y is y is equal to minus 5x plus 12 and quartile deviation of x is 3, find quartile deviation of y. Solution given है y is equal to minus 5x plus 12. Quartile deviation of y is equal to modulus a और a की वैल्यू है -5 into quartile deviation of x equals to quartile deviation of x की वैल्यू है 3. मॉड्यूलस में जो -5 है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज 5 into 3 equals to 15. So I can say that quartile deviation of y is equal to 15. Important points of quartile deviation. First point, it is based on middle 50% of the data. ये किस पे बेस्ड है? मिडल 50% ऑफ द डेटा पे बेस्ड है.
अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन ड्रॉ करने पर आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आप क्या लिखोगे, Q1, Q2, Q3 लिखेंगे। सो अब Q1 से Q2 एंड Q2 से Q3, तो Q1 से Q2 होता है 25% एंड Q2 से Q3 होता है 25%। सो दैट मीन्स 25% हो गया 50%। तो और ऐसे भी आप क्वार्टाइल डिवीजन में क्या फाइंड करते हो, Q1 फाइंड करते हो, Q3 फाइंड करते हो ना, तो ये क्या हो जाता है, मिडल 50%। It is the only measure of dispersion which can be calculated for open and class intervals. क्योंकि आपकी क्लास इंटरवल्स इसमें कैसे होती है, यू विल बी गिवन क्लास लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड मोर देन 40। तो इस केस में सिर्फ क्वार्टाइल्स ही हम फाइंड कर सकते हैं, अनक्वार्टाइल्स के बेस पे हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज अगर हाईएस्ट हो, लोएस्ट हो, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो Q1 एंड Q3 फाइंड करने वाला है आफ्टर मेकिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट। इट इज नॉट सुटेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। हम यहां से कंबाइंड क्वार्टाइल डेविएशन, कंबाइंड ग्रुप्स कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, प्लस माइनस से इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इट इज अफेक्टेड बाय पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ स्केल, मतलब कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से ही फर्क पड़ेगा, और साथ में अगर आपने मल्टीप्लाई किया है नेगेटिव साइन से, तो भी आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो किसमें आएगा, पॉजिटिव आएगा। y is equal to ax plus b, then quartile deviation of y is equal to modulus a multiply quartile deviation of x. Next, if ax plus by plus c is equal to 0, then quartile deviation of y find करना है मुझे from the given equation, which is equal to modulus में minus a upon b, modulus close, quartile deviation of x. Now what you have to remember over here is ax plus by plus c is equal to 0. तो आपने जो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y फाइंड किया उसमें आपने क्या लिखा, मॉड्यूलस माइनस a। अब a क्या है, तो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y मल्टीप्लाई क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। नेक्स्ट, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, मतलब आपका नॉर्मल कर्व बनेगा, उसमें हम Q1 फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला है x बार माइनस 0.675 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन। Q3 इज इक्वल टू x बार प्लस 0.675 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑल्सो x बार इज इक्वल टू क्या होता है, Q3 यस प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। QD इज इक्वल टू 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन बोल दीजिए, और 2 डिवाइडेड बाय 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बोल दीजिए। अगर आप 2 डिवाइड बाय 3 भी करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 0.666। अभी ऐसा हमारे स्टैटिस्टिशियन ने फॉर्मूला बना के दिया है कि भाई QD इज इक्वल टू 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से मिलेगा, अब अगर आप Q1 एंड Q3 की फॉर्मूला जो आपको ऊपर मैंने दे रखी है उसको सॉल्व करते हो, वहां से आपको QD की वैल्यू मिलेगी 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। अदरवाइज QD इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। रिलेशन बिटवीन QD एंड SD क्या है, तो रिलेशन बिटवीन QD एंड SD है कि that QD is less than standard deviation, or you can say standard deviation is more than quartile deviation, or standard deviation is equal to 3 divided by 2 multiply quartile deviation होता है। So let's solve the multiple choice questions based on the recent topics we have studied. Question 1. Semi interquartile deviation is given by the formula. See, question में लिखा है ना, semi interquartile deviation. So semi interquartile deviation क्या होगा आपका, the answer goes to option B, that is semi interquartile deviation, Q3 minus Q1 upon 2. Question number 2. Coefficient of quartile deviation equals to,
Quartile deviation multiply 100 divided by median. Is it true, false, C both? ये मैन both तो कभी होता ही नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ए ट्रू, क्योंकि QD अपॉन मीडियन इंटू 100 हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है. क्वेश्चन नंबर 3. Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 is, ये किसका फॉर्मूला है? ऑप्शन ए बी सी डी. सर बी सी तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो डेफिनेटली ऑप्शन ई इज द आंसर. कैसा सवाल पूछते हैं नहीं? क्वेश्चन नंबर 4. क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू ऑप्शन ए बी सी डी गिवन टू. सो क्वार्टाइल डेविएशन जो है इक्वल टू सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है. So option E is the correct answer. Question 5. Interquartile range is dash of quartile deviation. Option A, B, C, D. So interquartile range is dash of quartile deviation. चलिए अभी फॉर्मूला लिखते हैं. QD is equal to Q3 minus Q1 upon 2. Now QD is equal to Q3 माइनस Q1 की प्लेस पे आप लिख दीजिए इंटरक्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाय 2. अभी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा, और 2 का मतलब क्या हो जाएगा? डबल. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. क्वार्टाइल डेविएशन इज टेस्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. Option A affected, option B not affected, option C cannot be determined, option D none. So quartile deviation is not affected by shift of origin. Question number 7. If y is equal to ax plus b, then QD of y equals to, and the options given to you are A, B, C, D. तो हमने पढ़ा है कि क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस a इनटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x. अब ऑप्शन में मुझे कहीं पर भी मॉड्यूलस a एंड QD ऑफ x नहीं दिख रहा, इसीलिए आई विल से ऑप्शन डी नन इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1, ऑप्शन ए बी सी डी. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में Q1 की क्या फॉर्मूला होती है? यस सोचो. ओके सोच लिया. ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q3, ऑप्शंस ए बी सी डी. सो अगर Q1 में माइनस है तो Q3 में क्या होता है? प्लस. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन. तो हमने ऑप्शंस पढ़े हैं ए बी सी डी. सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का पॉइंट नंबर 1 भी था, दैट इट इज मिडल 50% ऑफ द आइटम्स, or you can say middle 50% of the observations. Question number 11. Which measure of dispersion can be calculated in case of open and intervals? So open and intervals में सिर्फ एक ही डेविएशन है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, and that is option C, quartile deviation, and that is the correct answer. Question number 12. For a moderately skewed distribution, quartile deviation and the standard deviations are related by. So what is the relation of quartile deviation and standard deviation? Right? ये हमने पढ़ा है ना अभी कि quartile deviation and standard deviation का क्या रिलेशन होता है? That quartile deviation is less than standard deviation, or you can say standard deviation is greater than quartile deviation. So the correct answer goes to option D. Standard deviation equals to 3 upon 2 quartile deviation. Right? So I hope
कि यहाँ पे आपको क्वार्टाइल डिवीजन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स. If you have any query in today's topic, you can definitely reach me on 76008 286 96 Be safe, take care. Thank you.